اجلاس مؤخر، مطالبات مؤخر، ملازمین کی امیدیں بھی مؤخر۔ سندھ امپلائیز الائنس کے مطالبات کھٹائی میں، سندھ حکومت کی ورکنگ کمیٹی غیر فعال، 3 اجلاس، اہم محکمے غیر حاضر، سیکریٹری اسکول ایجوکیشن اور سیکریٹری خزانہ کی عدم دلچسپی جاری، محکموں کے افسران کی تیسری بار بھی اجلاس میں عدم شرکت، افسران کو بجائے اسپیشل سیکریٹریز کو نمائندگی سونپ دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ امپلائیز الائنس کے مطالبات کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ سندھ حکومت کی ورکنگ کمیٹی غیر فعال ہو چکی، 3 اجلاس، اہم محکمے غیر حاضر رہے، سیکریٹری اسکول ایجوکیشن اور سیکریٹری خزانہ کی عدم دلچسپی جاری۔ بات کرنے کے لیے آزاد نوہریو ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل محمد موسیٰ، جیسا کہ سندھ امپلائیز الائنس جو صوبے بھر کے جو سرکاری محکموں یا اداروں کے ملازمین ہیں ان کا الائنس تھا، ان کی جانب سے متعدد بار احتجاج کیے کہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقہ جات میں یا کراچی میں، اس کے بعد انہوں نے بلاول ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن سندھ حکومت نے ان سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا اور باضابطہ طور پر ایک ورکنگ کمیٹی بنائی جس کا سربراہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سید خالد شاہ کو مقرر کیا، لیکن یہ ورکنگ کمیٹی اس وقت جو مکمل طور پر غیر فعال ہو چکی ہے، ان کے جو مطالبات تھے وہ اس وقت کھٹائی میں پڑ چکے ہیں، کیونکہ ورکنگ کمیٹی کے سربراہ نے متعدد بار یعنی 3 بار اجلاس بلائے، 3 بار اجلاسوں میں جو کمیٹی کے ممبران تھے وہ شرکت نہیں کر پائے، جس میں محکمہ اسکول تعلیم کے سیکریٹری ہیں زاہد علی عباسی اور محکمہ خزانہ جس سے ان کے معاملات جڑے ہوئے ہیں جو ہے فیاض جتوئی، وہ شریک 3 بار جو اجلاس بلائے کہ ان میں شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے دونوں محکموں کے اسپیشل سیکریٹری کو جو اجلاس میں شرکت کرنے کی ہدایت کی، وہ شریک ہوئے، لیکن معاملات میں کافی حد تک پیش رفت ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ورکنگ کمیٹی تھی انہوں نے مطالبات مان بھی لیے، تسلیم بھی کر لیے اور ان کو مطالبات کو حل کرنے کے حوالے سے یقین دہانی بھی کروائی گئی، لیکن اس کے بعد میں ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ مشروط ہوگا، لیکن ایک اجلاس بلایا جائے گا جو چیف سیکریٹری سندھ سید آصف در شاہ کی صدارت میں ہوگا، جس میں ورکنگ کمیٹی کے تمام ممبران شرکت کریں گے، جس میں سیکریٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی اور سیکریٹری خزانہ فیاض جتوئی کو پابند بنایا گیا کہ اس اجلاس میں شرکت کریں جو گزشتہ ہفتے ہونا تھا، لیکن اس اجلاس میں شرکت کرنے سے دونوں محکموں کے سیکریٹری نے معذرت کی اور کہا کہ ان کی کئی اور مصروفیات ہیں جس کے باعث وہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی نئی اجلاس بلایا گیا جس کے باعث یہ معاملات اس وقت کھٹائی میں پڑ چکے ہیں۔ اس حوالے سے سندھ امپلائیز الائنس کا جو سربراہ ہے اشرف خاص کے لیے ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملات ٹیکنیکلی ہیں، یعنی فنی معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کے حوالے سے سیکریٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی صاحب اور سیکریٹری خزانہ ہیں فیاض احمد جتوئی صاحب، ان کو شرکت کرنا لازمی ہوگا، لیکن وہ اجلاس میں شرکت کرنے سے تاخیر کر رہے ہیں، یعنی معذرت کر رہے ہیں، جس کے باعث یہ معاملات آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جب میں نے ان کے جو سربراہ سندھ امپلائیز الائنس کے اشرف خاص کے لیے ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، ان کا کہنا ہے کہ اجلاس نہ بلانا یہ چیف سیکریٹری سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اجلاس بلائیں، یہ معاملات حل کریں، لیکن معاملات حل طلب ہیں، لیکن حل کرنے کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات یا احکامات نہیں دیے جا رہے، جس کے بعد یہ معاملات اس وقت بھی التوا کے شکار ہیں۔ کمیٹی جو مکمل طور پر غیر فعال بن چکی ہے، اس کمیٹی کے 3 اجلاس ہوئے، 3 اجلاس میں کی صدارت جو ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سید خالد در شاہ نے کی۔ اس اجلاس میں سیکریٹری قانون علی احمد بلوچ، سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن جو ہے محمد علی کھوسو، انہوں نے شرکت کی، لیکن باقی جو ممبران انہوں نے شرکت نہیں کی، جس کے باعث یہ معاملات اس وقت بھی التوا کا شکار ہے۔ لیکن ملازمین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس ماہ یعنی جو ماہ چل رہا ہے اس ماہ میں اگر مطالبات نہیں مانے کہ کسی قسم کے کوئی اجلاس نہیں بلائے گئے اور پیش رفت نہیں کی گئی تو آگے کا لائے عمل ان کا اجلاس ہوگا، اجلاس میں وہ احتجاج کی کال کریں گے، وہی احتجاج ہوگا جو انہوں نے بلاول ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا، اس پر بھی آگے پیش رفت ہوگی۔ لیکن اس وقت سندھ حکومت نے صوبے بھر میں جو احتجاج کرنے پر جلسے جلوسوں پر دفعہ 144 نافذ کر رکھا ہے، لیکن ملازمین کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہو لیکن اس کے باوجود احتجاج کریں گے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب میں نے مختلف محکموں کے افسران سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ معاملات کھٹائی میں اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ جو ورکنگ کمیٹی کے ممبران ہیں سیکریٹری اسکول تعلیم یا سیکریٹری خزانہ جو سارے معاملات ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں 3 مطالبات اہم مطالبات ہیں، جس میں خاص طور پر DRA الاؤنس ہے جو تمام صوبوں کے ملازمین کو مل رہا ہے، وفاقی اداروں کے ملازمین کو مل رہا ہے، لیکن سندھ حکومت رواں مالی سال 2025 اور 2026 کا بجٹ اس میں رقم مختص نہیں کی تھی، لیکن جس کے باعث ملازمین سراپا احتجاج تھے۔ اس کے علاوہ بینولڈ فنڈ ہے اور گروپ انشورنس کے مطالبات ہیں، یہ 3 مطالبات ورکنگ کمیٹی کے سربراہ مان چکے ہیں، ورکنگ کمیٹی کی جو باقی ممبران مان چکے ہیں، لیکن سیکریٹری خزانہ اور سیکریٹری اسکول تعلیم ماننے کو تیار نہیں ہے، جس کے باعث یہ معاملات کھٹائی میں، لیکن سندھ حکومت نے تاحال اس معاملے کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی ورکنگ کمیٹی کو فعال بنانے کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے، جس کے باعث جو سندھ امپلائیز الائنس ہے انہوں نے ایک بار پھر سے احتجاج کرنے کی دھمکی دے دی ہے، لیکن ورکنگ کمیٹی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔
जी। अच्छा आज़ाद, ये बताइएगा कि जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि गैर संजीदगी दिखाई जा रही है चंद अरकान की तरफ से, महकमों के अफसरान जो हैं वो अदम शिरकत है तीसरे इजलास में भी, तो क्या वजूहात है? जैसे हम देखते हैं कि इजलास होते हैं, जैसे इसको बुलाया जाता है वो आ जाते हैं, तो क्या मुकम्मल तौर पर ही इस पूरे मामले को जो है वो गैर संजीदगी से देखा जा रहा है, इसलिए जो मेंबरान हैं वो भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे और आना जो है वो अपना गैर ज़रूरी समझ रहे हैं? मोहम्मद मूसा, जैसा कि हमारे पास यहाँ एक हस्ब रवायत बन चुकी है कि कमेटी बनाना यानी किसी मामले को खटाई डाल देना। हमारे पास कमेटियाँ बनती है, लेकिन कमेटियाँ बनने के बाद कमेटियाँ क्या करती है क्या नहीं करती है, उसकी पेशरफ क्या होती है, उस हवाले से वो कमेटियाँ बनने के बाद में कमेटियाँ कोई ख़ास तौर पर कोई ऐसा असर नहीं दिखाती जिसके बाद कहा जाए या समझा जाए कि इस कमेटी ने ऐसा फैसला कर दिया है जो हाथम तीर की कब्र पर लात मार दी, कुछ भी कर दिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कमेटी हुकूमत बना देती है, लेकिन कमेटी बनाने के बाद में वो कमेटी कुछ अमल दरामद नहीं करती है। हमारे पास जो कमेटियां बनती है, कमेटी बनाना यानी किसी मामले को खटाई में डाल देना, इस तरह ही इन्होंने सिंध हुकूमत ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन कमेटी के मेंबरान मान रहे हैं। मेरी तमाम जो कमेटी के मेंबरान हैं, खासतौर पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो जाए या सेक्रेटरी कानून या सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो, वो मान भी रहे हैं कि इनके मुतालबात जायज़ हैं। तमाम सूबों में 3 सूबे हैं, बलूचिस्तान, केपी और पंजाब में ये फैसला नाफिज है। उनकी हुकूमतों ने बाज़ाब्ता तौर पर बजट में रकम मुख्तस कर दी है, लेकिन वफाकी हुकूमत के मुलाजमिन के लिए बजट मुख्तस है। लेकिन सिंध हुकूमत ने हमेशा सिंध हुकूमत पहल करती है, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों हमें इजाफा करती है, दीगर सूबों से बढ़ाती है, पेंशन में इजाफा करती है, उनके अलाउंस में इजाफा करती है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि मुराद अली शाह की सरकार ने नए रवां माली साल जो 2025 या 2026 का बजट है उसमें रकम मुख्तस नहीं की। ये मामला रुपये हज़ारों लाखों करोड़ों का नहीं है, ये खरबों का मामला है, क्योंकि खरबों रुपये DRA अलाउंस या ग्रुप इंश्योरेंस या बैनुल फंड की मद में जो है उन मुलाजमिन को सिंध हुकूमत अदा करेगी। खरबों रुपये का मामला है, लेकिन मामले में रुकावट कौन है? वो सेक्रेटरी खजाना फयाज जतो या सेक्रेटरी स्कूल तलीम ज़ाहिद अब्बासी जो चीफ सेक्रेटरी सिंध के बुलाए गए अजलास में शिरकत करने को तैयार नहीं है। इसलिए मामला ये है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की रिट जो है इन अफसरान के सामने बेबस है। अगर चीफ सेक्रेटरी सिंध अगर अपनी रिट काम नहीं कर सकता है तो ये अफसरान उनकी बात मानने को तैयार नहीं। इस मामले को सिंध हुकूमत खुद यानी मुराद अली शाह या हुकूमत के जिन नुमाइंदगान ने, सईद गनी, नासिर शाह ने इन मुलाजमिन से बातचीत की थी, उनको ये करना है कि इस मामले पर या सिंध हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाना और अफसरान को पाबंद करना ताकि मुलाजमिन का मामला हल करे। क्योंकि सिंध हुकूमत को चलाने के लिए मुराद अली शाह पहले कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत खुद नहीं चलती, लेकिन ये अफसरान, ये मुलाजमिन जो सिंध हुकूमत को चलाते हैं, सिंध हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के अहकामात पर जो है 2 महकमों के सेक्रेटरी अमल दरामद करने को तैयार नहीं, जिसमें ज़ाहिद अब्बासी या फयाज जतोई है। इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को इस मामले का सख्ती से नोटिस लेना होगा, उसकी रिट जो है कायम करनी होगी। लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानब से इस मामले पर किसी किस्म की कोई संजीदगी दिखाई हुई देती नजर नहीं आ रही, जिसके बाद ये मामला इस वक्त भी इल्तवा का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक हादसा, कार की टक्कर से एक खातून जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक खातून रोड क्रॉस कर रही थी कि हादसा पेश आया। मुतासरा खवातीन सास बहू हैं, ड्राइवर को गिरफ्तार और गाड़ी को तहवील में ले लिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड पर यह ट्रैफिक हादसा पेश आया है। बात करेंगे दुर्र शहबाज से, इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर। अब से 1.5 घंटा कबल यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एक रोड क्रॉस करती हुई 2 खवातीन को हिट किया, जिसके नतीजे में 38 साला शमशाद खातून जो थी वो मौके पर जाँ बहक हो गई थी। इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हूँ, यहाँ पे ये ब्लड पड़ा हुआ है और उनके साथ जो एक और ख़ातून थी वो शदीद ज़ख्मी हुई हैं, जिनकी जो शनाख्त हुई है रुकैया के नाम से सामने आई है, 28 साल। अच्छा जी, दोनों जो ज़ख्मी और जाँ बहक है उन्हें एक निजी एम्बुलेंस के ज़रिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO से जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमने फौरी तौर पर जो गाड़ी थी उस गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है और जो ड्राइवर है उसे गिरफ़्तार कर लिया है। इन दोनों ख़वातीन का जो रिश्ता बताया जा रहा है, ये सास बहू का रिश्ता बताया जा रहा है। ये यहाँ से क्रॉस करती हुई आ रही थी यहाँ पर, जबकि यहाँ पर टर्निंग है तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी स्पीड में नहीं होती है, लेकिन वो गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी, जिसकी जद में आकर दोनों ख़वातीन जो थी, जिसमें से एक जाँ बहक हो गई थी और एक शदीद ज़ख्मी, दोनों को इस वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मी के हवाले से जब हमारी बात हुई तो हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है और दोनों यहाँ कराची यूनिवर्सिटी के पीछे एक एरिया है वहाँ की जा रही हैं। जी, सिंध हाई कोर्ट के करीब नामालूम अफराद ने दिन दहाड़े सड़क किनारे कदीम दरख्त काट डाले। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह रोड पर मस्जिद खजरा के सामने कई दरख्त मुतासर हुए। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमानी से। जी।
देखिए जी हुकाम एक तरफ तो इस बात पर गौर कर रही है कि क्लाइमेट चेंज से कैसे निकला जाए और प्लांटेशन की जाए शहर भर में, लेकिन दूसरी तरफ जो कदीमी तारीखी दरख्त हैं उनको भी काटा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर गुलाम हिदायत रोड पर, और ये आप देख सकते हैं ये पुराना एक दरख्त कदीमी दरख्त था जो कि यहाँ पर काटा गया है, और इनकी लकड़ी भी जो है यहाँ पर मौजूद है। ये एक दरख्त नहीं है, इसके अलावा और भी दरख्त हैं। ये मेरे कैमरामैन दूसरा दरख्त भी आपको दिखाएगा कि ये दरख्त जो है गर्मियों में छाँव का सबब बनते हैं, और यहाँ पर अगर कोई साइलिन भी आता है, क्योंकि हाई कोर्ट बिल्कुल यहाँ पर करीब है और पासपोर्ट ऑफिस दफ्तर भी करीब है, और नादरा समेत दीगर दफातर भी करीब है। ये अहम गुजरगाह है, यहाँ पर शहरी गुजरते हैं। बड़ा एक अच्छा व्यू आता था इन दरख्तों की वजह से, लेकिन ये दरख्त जो है वो काटे गए हैं और इनकी लकड़ियाँ पड़ी है। ये कदीमी तारीख दरख्त था, आप इनका हाल जो है आप देख सकते हैं। इस एक दरख्त को मैच्योर होने में, बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन काटने में उनको सिर्फ कुछ सेकंड जो है वो लग जाते हैं। और ये दरख्त काटे गए हैं, किसने काटे, किसकी इजाज़त से काटे गए, कुछ नहीं पता। आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाऊं कि ये वाला जो दरख्त था ये भी बड़ा कदीमी दरख्त है, पुराना दरख्त है और एक बड़ा घना दरख्त था। इनके आप हरे पत्ते देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे मौजूद हैं, लेकिन ये भी दरख्त काटा गया है। सिर्फ ये एक दरख्त नहीं है, 2-3 दरख्त नहीं है, बिल्कुल इस लाइन से जो है और भी दीगर दरख्त हैं जो कि काटे गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर एक तरफ दावा किया जाता है कि प्लांटेशन की जाए, दरख्त लगाए जाएँ, लेकिन वहीं पर ही कदीमी और तारीखी दरख्तों को भी जो है वो काटा जा रहा है। किसकी इजाज़त से काटा गया, क्यों काटा गया, ये भी अहम सवाल है। लेकिन अभी भी इनके जो लकड़ी है या दीगर जो पत्ते देख सकते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर नीचे जो है नाले हो रहा है। जी, साइट एरिया में पेट्रोल पंप पर सुबह 8 बजे टैंकर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और बड़े हादसे को टाल दिया। क्रेन की मदद से टैंकर को हटाया गया। पंप मालिकान मौके पर मौजूद थे और अमले की जानिब से वीडियो बनाने पर बदतमीजी की शिकायत सामने आई। ताहम हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साइट एरिया में पेट्रोल पंप पर सुबह 8 बजे टैंकर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, बड़े हादसे को टाल दिया। क्रेन की मदद से टैंकर को हटाया गया। पंप मालिकान मौके पर मौजूद थे। अमले की जानिब से वीडियो बनाने पर बदतमीजी भी की गई। कराची में 2 रोज़ा 10वां अदब फेस्टिवल आज से शुरू। हैबिट सिटी में फेस्टिवल का इफ्तिताह होने वाला है। अदब फेस्टिवल में किताबों की रनुमाई और सेशंस होंगे। ख़वातीन, बच्चों, सियासत और अदबी मौज़ूआत पर मुबाहिसे, अदीब, दानिश्वर और स्कॉलर्स खिताब करेंगे। 2 रोज़ा में 20 से ज़ायद सेशंस मुतवक्के हैं। आपको बताएं कि अदबी सेशन आज से शुरू होने जा रहा है। 10वां अदबी फेस्टिवल है 2 रोज़ा जो आज से शुरू होने जा रहा है। इस पर बात कर लेंगे आजिज़ हमाली से। आजिज़, बताइएगा कौन कौन सेशंस में शिरकत करेगा? जी देखें, कराची का ये बहुत बड़ा एक लिटरेरी फेस्टिवल होता है। अदब फेस्टिवल इसका नाम है, जो आज से बाकायदा शुरू होगा। 2 रोज़ा ये अदब फेस्टिवल है और ये 10वां अदब फेस्टिवल है। इसकी ऑर्गेनाइज़र अमीना सैयद हैं, जो पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में होती थी। उन्होंने ही जो है कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ किया था। तो अब जो है अदब फेस्टिवल के नाम से ये फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है। इसमें इन 2 दिनों के दौरान बहुत सारे सेशंस हैं। 20 से ज़ायद सेशंस होंगे 2 दिनों के दौरान, जिसमें मुख्तलिफ अदीब, शायर, दानिश्वर, फ़नकार और नामवर लोग जो हैं इसमें ख़िताब करेंगे। मुतअद्दिद किताबों की तकरीबें रौनमाई होगी इन 2 दिनों के दौरान, और मुख्तलिफ किताबों को एवार्ड्स भी दिए जाएंगे। 3 किताबों को एवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिनमें अंग्रेज़ी, उर्दू और सिंधी अदब से वाबस्ता ये 3 किताब हैं जिनके मुसन्निफ़ीन को एवार्ड दिए जाएंगे। यहाँ पे इन 2 रोज़ के दौरान महफ़िल मुशायरा होगा, और इस मुशायरे में भी इस फेस्टिवल की खूबी ये है
کہ یہاں تمام زبانوں کو اہمیت دی جاتی ہے، صرف اردو نہیں، اردو، سندھی، سرائکی، بلوچی، پشتو، جو مشاعرہ ہوتا ہے اس میں تمام زبانوں کے شعراء جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح فیسٹیول میں جو سیشنز ہیں ان کو بھی کچھ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے ادیب اور دانشور شرکت کرتے ہیں، جیسے کہ ایک سیشن میں نور الدا شاہ ہیں جو سندھی کی بہت بڑی رائٹر ہیں، لیکن ایک سیشن کو وہ کنڈکٹ کریں گی۔ اسی طرح محفل موسیقی بھی پہلے دن سیف سمیع جو ہے جو بہت سندھ کا فیمس سنگر ہے، لیکن اس طرح مختلف زبانوں کے جو فنکار ہیں وہ بھی اس فیسٹیول میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ 1 بجے اس کا وقت رکھا ہے افتتاح کا، لیکن اب تک اس کا باقاعدہ افتتاح نہیں ہوا ہے اور فیسٹیول کی تیاریاں ہیں۔ اس وقت اس فیسٹیول میں مختلف کتابوں کے اسٹالز لگائے گئے ہیں، کچھ کلچرل اسٹالز لگائے گئے ہیں، کچھ جامعات کے اسٹوڈنٹس کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے اس وقت یہاں پر موجود ہے، لیکن فیسٹیول جو ہے باقاعدہ شروع نہیں ہو سکا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آرٹس کونسل پاکستان کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کا 23واں روز جاری ہے۔ وائس آف چینج آرٹ کے موضوع سے نشست کا اہتمام، یونان کے آرٹ پر پروگرام کا انعقاد۔ اکثر شیخ سے تفصیلات لے لیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول اپنے آب و تاب سے جاری ہے، اور اس ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آج 23واں روز ہے، جہاں پر جو 4 سرگرمیاں ہیں وہ آج کے شیڈیول میں منعقد کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ آج 23ویں روز کا جو آغاز ہوگا وہ دوپہر 2 بجے جوش ملیح آبادی میں ایک خصوصی نشست منعقد کی گئی ہے، جس کا نام ہے وائس آف چینج سے ہوگا۔ اس کے بعد سے 3 بجے احمد شاہ بلڈنگ میں فائن آرٹ ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے گا، جو کہ فائن آرٹ کے شوقین ہیں یا پھر جن کو پینٹنگ سے یا پھر ان کو کیلیگرافی کرنے کا شوق ہے، وہ وہاں پر جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ وہاں پر جا کے شرکت کریں گے۔ اس کے بعد شام 4 بجے پاکستانی فلم پرے ہٹ کی اسکریننگ کی جائے گی، اور اس کے بعد شام 7 بجے ایک تھیٹر ہے وہ پلے کیا جائے گا، جہاں پر یہاں پہ اپنے آب و تاب سے جو ہے ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری ہے، جو کہ 30 اکتوبر کو جاری ہوا تھا اور 7 دسمبر تک اسی طریقے سے اپنی رونقیں بکھیرتا رہے گا، جہاں پر 140 سے زائد ممالک اور 1000 سے زائد جو ہے آرٹسٹ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، جس میں تھیٹر، میوزک، ڈانسنگ، اس کے علاوہ دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز جو کہ صبح سے لے کر رات تک اسی طریقے سے جاری رہتی ہیں۔ اور یہ فیسٹیول اپنی رونقیں 7 دسمبر تک اسی طریقے سے جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے آرٹسٹ ہیں وہ اپنے کلچر کو یہاں پر فروخت کر رہے ہیں، وہ اپنے کلچر کا بتا رہے ہیں، جو مختلف کنٹریز کے کلچر ہیں وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم انہیں اپنے کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ رونقیں جو ہے 7 دسمبر تک کراچی آرٹس کونسل کے اندر اپنے پورے آب و تاب پر رہیں گی۔ جی اچھا، اکثر یہ بتائیے گا کہ آج 23واں روز ہے، 22 روز گزر گئے ہیں، تو کون سا سیشن جو ہے، کون سا آرٹ، کون سی کلاس سب سے زیادہ مقبول ہوئی، سب سے زیادہ اس نے جو ہے مقبولیت حاصل کی، عوام کی توجہ حاصل کی؟ آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ بھی بریفنگ دیتے رہتے ہیں اس حوالے سے، تو ان کا کیا بتانا تھا کہ سب سے زیادہ مقبولیت کس چیز نے اس میں حاصل کی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے ممالک ہیں جن کا ابھی فن، کلچر آنے والے دنوں میں ایڈ آن ہونا ہے؟ جی بالکل، احمد شاہ جو ہے بالکل بریفنگ دیتے رہتے ہیں کہ ایسے کون سے کلچر ہیں جو کہ آنے والے ہیں۔ اگر میں ابھی سے آپ کو بتا دوں گی کہ ایسے کون سے کلچر ہیں جو کہ آنے والے ہیں تو وہ پھر سرپرائز نہیں رہے گا، تو ان کلچر کا تبھی پتہ چلے گا جب وہ آئیں گے اور آ کے یہاں پر پرفارمنس کریں گے اور وہ اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں گے۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی موسیٰ کہ ایسی کون سی نشست ہے جو کہ سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے، تو یہاں پر مختلف قسم کی نشست ہوتی ہے، جس میں جو یہاں پہ شرکاء آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جو دیگر آرٹسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی نشست پر تو ہوتے ہیں، جو ان کے پرفارمنسز ہوتی ہیں وہ تو اس میں بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی ادھر بھی جاتے ہیں، اسٹوڈیو میں بھی جاتے ہیں، آڈیٹوریم میں بھی جاتے ہیں، ان کی جب ڈانس پرفارمنس ہوتی ہے ادھر بھی شرکت کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مقبولیت جو یہاں پر ہوتی ہے وہ فائن آرٹ کو ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پینٹنگ زیادہ کرتے ہیں، کیلیگرافی کرتے ہیں، اگر
हम आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग में ही देखें तो आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग के मुख्तलिफ वॉल के अंदर यहाँ पे जो दूसरे ममालिक से लोग आए हुए हैं, जो आर्टिस्ट आए हुए हैं, उन्होंने अपनी कलाकारी, अपनी सलाहियतें दिखाई हैं। यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल की जो बिल्डिंग है वो पेंट की है, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई हैं, मुख्तलिफ कोरियोग्राफी की गई है। इसी के साथ साथ अगर ये कहना क़ब्ल वक्त होगा या फिर मुनासिब नहीं होगा कि किसी एक चीज़ को जो है ख़ासा मकबूल किया गया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सुबह से लेकर या शाम तक जितनी भी परफॉर्मेंसेस होती हैं, जितने भी थिएटर प्ले किए जाते हैं, फिल्में स्क्रीनिंग होती हैं, वर्कशॉप होती हैं या फिर टॉक होती है, तो वो खासा मकबूल यहाँ पर की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चिल्ड्रंस डे की मुनासबत से आगाही वॉक, वज़ीर आला बच्चों में घुल मिल गए, वॉक की क़यादत की। तलबा और NGOs के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मुराद अली शाह ने बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दिया। बच्चों के लिए महफूज माहौल की फराहमी पर जोर दिया। एतराफ़ किया सिंध में 70 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जिनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से भी ऊपर बताई जाती है, सिंध में भी 70 लाख बच्चे स्कूल गोइंग आउट ऑफ स्कूल हैं। उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हम इस टेन्योर में इनकी तादाद जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको कम अज़ कम आधी कर दें, इसलिए कि अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए तो अगले 10 साल में ये बढ़ के 5 करोड़ तक पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, बल्कि आईनी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एजुकेशन दे। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपनी पूरी कोशिश करेगी कि हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर जो है वो 0 तक ले आएँ। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपने मुस्तकबिल का, यानी हमारे बच्चों का, उनके राइट्स का, उनकी एजुकेशन का, उनकी वेलबींग का हमेशा ख्याल रखेगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन का समझौता मंजूर करते हुए 2 मुल्ज़िमान को मुकदमे से बरी कर दिया। जवाद आसिफ से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना सरजानी टाउन की हदूद में कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां 3 मुल्ज़िमान समाअत के दौरान ज़मानत पर अदालत में पेश हुए। इन मुल्ज़िमान में फराज, खालिद और आशिक अली शामिल हैं। 2 मुल्ज़िमान फराज और आशिक और जो मकतूल के लवाहिकीन हैं जो अदालत में आज पेश हुए, उनके दरमियान समझौता तय पा गया है। समझौते की दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई गई, जिस पर लवाहिकीन ने किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया। उन्हें एतराज़ नहीं है कि अगर इन 2 मुल्ज़िमान को इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए, लिहाजा अदालत ने समझौते की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 2 मुल्ज़िमान को इस मुकदमे से बरी कर दिया है। ताहम मुल्ज़िम खालिद के खिलाफ मुकदमा जारी है और उसे आइंदा समाअत पर हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए अदालत ने समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है और जो अगली समाअत है उसमें गवाहान को तलब कर लिया है, जबकि मुद्दई मुकदमा को भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है और तफ्तीशी अफसर को भी तलब कर लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना सरजानी टाउन में 4 साल कबल दर्ज किया गया था। मुकदमे में कत्ल और की दफ़ा शामिल की गई थी। जी, कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। सोने की दरामद और बरामद दोबारा बहाल हो गई। वजारत तिजारत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 6 मई 2025 का SRO 760 मनसूख कर दिया गया। वजारत तिजारत ने नया SRO 2198 जारी किया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ खान, बताइएगा, दरामदो बरामदात दोबारा बहाल हुई है, क्या सोने की कीमतों पर इस पर कोई असर पड़ेगा इस बात का? जी, देखा जाए सोने की कीमतें तो आदमी बाजार के हिसाब से होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि सोने के जो सेक्टर है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, नए जो सेट बनाकर जो एक्सपोर्ट करता था, उससे कीमती ज़र मुबादला आता था, तो उसकी इजाज़त जो है एक बार फिर दे दी गई है। 7 माह कबल जो है 6 मई 2025 को SRO 760 के तहत जो है सोने की दरामद और बरामद पाबंदी लगाई गई थी, जिसके बाद जांच की गई थी तो उसमें कोई भी स्मगलिंग या उसमें गैर कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करने के शवाहिद नहीं मिले, जिसके बाद जो है यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सोने की दरामद करके दोबारा बरामद करने की जो है उसको बहाल करने की वजारत तिजारत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है और जिसके तहत जो 6 मई 2025 का जो SRO 760 को मंसूख कर दिया गया है और सोने की बरामद करके जो यहाँ पे बहाल करने का हुक्म
हुक्म नामा जारी कर दिया गया है। वज़ारत तिजारत ने नया SRO जो है 2198 जारी कर दिया है और साथ में इस SRO में कहा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो दोबारा से स्कीम के तहत लाजमी 120 दिन की मुद्दत से फायदा उठाएंगे। और यहाँ बताता चलूँ कि ECC के बाद वफाकी काबीने की तौसीक के बाद ये सर्कुलर जारी किया गया है और ये जो SRO है उसके तहत ये होगा कि आप सोना इंपोर्ट कर वैल्यू एडिशन कर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इससे जो सोने से मुतल्लिक जो रोजगार है वो भी बेहतर होगा और पाकिस्तानी जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने नई जो वैल्यू एडिशन करके कीमती दर मुबादला कमा सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में हफ्तावार 167 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 0.01% इजाफे के साथ 1,62,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस पर भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान से अपडेट कीजिएगा। देखा जाए हफ्तावार मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकार मोहताज नजर आए, जिसकी वजह से एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 170 पॉइंट का सिर्फ इजाफा हुआ, जो कि बढ़कर 1,62,102 की सतह पे बंद हुआ है। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,63,817 रही है, जबकि कम तरीन सतह 1,60,583 पॉइंट रही है। एक हफ्ते में 189 अरब रुपए मालियत से 5 अरब 28 करोड़ शेयर का लेन देन किया गया है और शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 79 अरब रुपए बढ़कर 18,512 अरब रुपए पर पहुंच गई। हफ्ते के दौरान सरमाकार मोहताज नजर आए, जिसकी बुनियादी वजह ये कि अक्टूबर 25 में करंट अकाउंट 11 करोड़ 20 लाख डॉलर का खसारा रहा है, जो कि सितंबर में करंट अकाउंट 8 करोड़ 30 लाख डॉलर का सरप्लस था। इसके साथ ही देखा जाए अक्टूबर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी माहाना 4% कमी हुई, जबकि सालाना 23% का इजाफा हुआ। अक्टूबर 25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी जो 17 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुंच गई। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की शाहराह मिल्लत रोड पर सीवरेज सिस्टम नाकारा है। 2 रोज से शाहरा पर गटर का गंदा पानी जमा है। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मजीद बताएंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी के इलाके जो है शाहराह मिल्लत रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर मेरे में दिखा सकें काशिफ, तो किस कदर रोड की ख़राब सूरत हाल है। सेवरेज का नाक़िस निज़ाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रोड भी ख़राब है, टूटी हुई, और साथ ही साथ गटर का जो गंदा पानी इसमें जमा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में इस कदर बदबू है कि यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे एक खातून वर्कर मौजूद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे सफाई करती है। इनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है इन हालात के अंदर काम करना। असां मुश्किल सा कम कराना, हालात खराब हुए, चराए गंदा है, घर खराब कर सफ़ा बंद बोई अचे थी की भाजी। असां हालात असांजा खराब हुए, बंद बोई वही थी अचे किचरे में। 500 रुपया मिलन था, छा कयूं, सुबह जो 6 बजे अचूं था, 3 बजे घर था वञूं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खातून वर्कर मौजूद थी। इनका यही कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे सफाई करने आती हैं, लेकिन 2 रोज़ से यहाँ पे जो है गटर का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से इनके लिए जो है काम करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जब सफाई करती हैं तो बदबू इस कदर है। साथ ही साथ यहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा होती हैं कि बीमारियों के बढ़ने के भी खदशात जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। और इनका यही कहना था कि यहाँ पे सफाई करती हैं, मजबूरी है इनकी यहाँ पे काम करना, लेकिन मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा रही हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री के तहत 8वीं पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड टूरिज्म का इनेकाद किया गया। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री की जानिब से ज़बरदस्त इनिशिएटिव देखने में आ रहा है और एसोसिएशन की जानिब से आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत 8वीं पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड टूरिज़म का जो है वो इनेकाद किया निजी होटल में। और इस एग्जीबिशन और इस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान भर से जो होटल इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ होटल्स हैं, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और शुरा को मुख्तलिफ जो ऑफ़र्स हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं। इस एसोसिएशन के जो बानी हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद बल्ला साहब, इनसे जानते हैं। सर, ज़बरदस्त इवेंट देखने में आ रहा है और कलरफुल इवेंट है। इस इवेंट के बुनियादी मकसद क्या है इनेकाद का, और ये बताएगा कि पाकिस्तान का जो टूरिज़्म है उसमें कितना पोटेंशियल है कि हमारी जो एक्सपोर्ट को एक तो बढ़ाने के हवाले से और दूसरी ये कि डॉलर्स को जो है वो हम जो है वो ला सकते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। सर, 2 चीज़ें हैं। आपका एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि करने का मकसद क्या है। करने का मकसद तो ये है कि सोतों को जगाना,
ठीक है जी। दो चीज़ें हैं पाकिस्तान में इस वक्त, हम चाहते हैं किसी ज़राए से किसी तरीके से भी लेजिटिमेट डॉलर्स लाए जा सकते हैं। एक तो ज़रिया एक्सपोर्ट का होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का होता है, तीसरा टूरिज़्म जिसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है और बड़ा रेडीमेड चीज़ें हैं। सिर्फ हमने स्ट्रीमलाइन करना है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस देना है कि जी पाकिस्तान आए। और अभी अच्छा, टूरिज़्म में दो चीज़ें हैं, हम इनबाउंड टूरिज़्म पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करें कि जहाँ जो 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाहर से डॉलर्स भी आएंगे। और ये रेडीमेड इंडस्ट्री है, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो इनबाउंड टूरिज़्म ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी तो हमारी विद इन द कंट्री टूरिज़्म माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत ही पिछले चंद सालों में इम्प्रूव हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर से डिप्लोमेट्स भी आएँ, फॉरेनर्स भी आएँ, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर सेटल है वो भी आए, तो उनके लिए हमें यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। उस लेवल का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बस ये हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा पुरअमन माहौल हो और यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है ज़राए मुख्तलिफ हैं, मेडिकल टूरिज़म है, रिलीजियस टूरिज़म है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द टूरिज़म है, तो हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी एसोसिएशन पिछले 3 सालों में कोई 8 इवेंट करा चुकी है। हमने यूएस में, जद्दा में, बहरीन में, अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो जिसकी वजह से हमें हौसला हुआ है कि हम जो पाकिस्तान में जो बेस्ड हुए हैं जो प्रोजेक्ट्स, उनको यहाँ मोटिवेट करें, लोगों को लेके आएँ, विद इन द कंट्री भी इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को उजागर करें। और यही लोग हमारे साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे साथ बाहर होंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सयाहती मकामात हैं वो कुदरती हैं और अपनी दिलकशी और अपने हुस्न के एतबार से वो अपनी मिसाल आप हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन सयाहती मकामात को जो है वो हुकूमत अगर तवज्जो दे और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को अगर हम जो है वो परवान चढ़ाए तो यकीनन टूरिज़म के ज़रिए से हम जो है वो कसी ज़राए मुबादला कमा सकते हैं। यही मकसद है इस इवेंट का। और इस इवेंट में हम देख रहे हैं कि जो शुरा की जानिब से इस इवेंट को खासा सराहा जा रहा है। जी, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के शोबा नर्सिंग और मिडवाइफरी की जानिब से इंटरनेशनल नर्सिंग रिसर्च कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। मज़ीद बताएंगे इब्राहिम रन। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में, जहां पर इंटरनेशनल नर्सिंग रिसर्च कॉन्फ्रेंस जारी है, जहां पर मेहमान खसूसी HEC के चेयरमैन हैं प्रोफेसर तारिक रफ़ी साहब। उनसे पूछेंगे कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है शोबा तिब में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नर्सेज के लिए कितना फ़ायदेमंद होंगे और मुल्क में और इंटरनेशनल लेवल पे इनकी कितनी अहमियत है। सर बहुत शुक्रिया अपने टाइम दे। सर क्या कहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से? कॉन्फ्रेंस के बारे में तो कोई शक नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट्स अ न्यू टूल एंड इट इज़ द टूल ऑफ द फ्यूचर। अब बात यह है कि हम सबको मेडिकल प्रोफेशन के तमाम लोगों को, चाहे नर्सिंग हो या वो मेडिकल वाले हो, डॉक्टर्स हो, डेंटिस्ट हो, हम सबको अगर अपने आप को रखना है कि हम फ्यूचर के साथ चलें, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने साथ मिलाना होगा। लेकिन जैसे मैंने अब हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कनाडा से भी कहा और सबको पता है कि जो ह्यूमन फैक्टर है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इंसान जो है वो वही रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सपोर्ट के लिए। और ये सपोर्ट ऐसी ही जैसे कि हम मुख्तलिफ किस्म के और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं अपनी सपोर्ट में डायग्नोसिस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें उसमें मदद देगी और उसके बगैर शायद मुस्तकबिल में हमारे लिए पीछे रह जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अहम इक़दाम है कि उन्होंने इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया। इससे इनके स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को डेफिनेटली सीखने का बहुत मौका मिलेगा। साथ साथ प्रोफेसर तारिक साहब रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया। साथ साथ सुमेरा पंजवानी साहबा से बात करेंगे, प्रिंसिपल है। आप बताएं कितना अच्छा लग रहा है कि तमाम शोबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाली नर्सेज मौजूद हैं, कितनी मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है? जी, सो ये हमारा इनिशिएटिव सेकंड इंटरनेशनल नर्सिंग रिसर्च कॉन्फ्रेंस का है और इसमें जो हमारा थीम था दैट इज़ नेविगेटिंग AI इन नर्सिंग, जिसमें हम 3 डोमेन्स को टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ प्रैक्टिस, रिसर्च एंड एजुकेशन। दुनिया बदल रही है तो दुनिया के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तमाम प्रोफेशंस अपनी नॉलेज को एडवांस करें और सीखें कि किस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए।
इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर्स भी मौजूद थे, नेशनली रिनाउंड स्पीकर्स भी हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस से पहले हमारी 3 दिन की प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स हुई थी जो कि एआई पे ही फोकस थी, जिसमें तकरीबन 250 के करीब बच्चों ने फ़ायदा उठाया है। उन्होंने आके सीखा है कि कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एजुकेशन, अपनी रिसर्च को इन्हांस करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कॉन्फ्रेंस में भी ये बच्चे लर्न कर सकेंगे कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सुमेरा पंजवानी साहब। प्रोफेसर तारिक रफ़ी साहब, बहुत अच्छा लगा कि शोभा तिब्ब से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नर्सेज के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जहाँ पे शोभा नर्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने खुशी का इजहार किया और इस तरह की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को जारी रखने की भी उम्मीद जाहिर की। जी, शहर कायद में 35वीं नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक मुनक़्क़िद होंगे। मुल्क भर से 11,000 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इवेंट में शिरकत करेंगे। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। 35वें नेशनल गेम्स का आगाज़ 6 दिसंबर से नेशनल बैंक स्टेडियम में होगा, जिसकी तैयारियां जो है ज़ोरों शोर से जारी हैं। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने नेशनल गेम्स का जो है वो सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है, जहां पर तमाम तर तैयारियां जो है वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर की जा रही हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए जो है तकरीबन नेशनल गेम्स के जो खेल है जो ओलंपिक से शुदा गेम है वो टोटल 33 खेलों के मुकाबले हैं जो कि इस नेशनल गेम्स में कराए जाएंगे, जिसमें 24 वेन्यूज़ रखे गए। 24 वेन्यूज़ पे जो है ये तमाम मुकाबले होंगे। सूबे की जो है टीम होंगी जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और इसके अलावा बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और जो है डिपार्टमेंट में पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स, पाक नेवी, पाक बहरिया और दीगर जो है डिपार्टमेंट की टीमें जो है वो इसमें शामिल होंगी। बात की जाए तैयारियों के हवाले से तो तैयारियों का जो है वो आगाज़ हो चुका है। टॉर्च सेरेमनी जो कि अभी कुछ रोज़ पहले कबल ही हुई थी, अब ये टॉर्च जो सेरेमनी है जो टॉर्च है रैली की सूरत में जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में उसको सफ़र कराया गया था। उसके बाद ये टॉर्च रैली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई है ओलंपिक एसोसिएशन उनके हवाले किया गया था। फिर उसके बाद वो पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन और फिर खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले की गई है। इस तरह पूरे पाकिस्तान का सफ़र करते हुए जो है वो मशल जो टॉर्च रैली है वो दोबारा से 4 दिसंबर को कराची पहुंचेगी, क्योंकि 5 दिसंबर को जो है इफ्तिताई तकरीब रखी गई है। पूरे पाकिस्तान से 11,000 से ज़ायद एथलीट जो है वो शिरकत कर रहे हैं और इनको अकोमोडेट करने के लिए जो है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं जिनकी ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का ख्याल रखा जाएगा और तमाम खिलाड़ियों को जो है वो डेली बेसिस की बुनियाद पर जो है वो रकम भी अदा की जाएगी। जी, कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची की मज़दा यूनियन के बयानात की सख्ती से तरदीद। 22 नवंबर के वाक़यात को गलत पेश करने की कोशिश नाकाम। मज़दा गाड़ी से 5,000 लीटर स्मगल शुदा ईरानी डीजल बरामद। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, जैसे कि नॉर्दर्न बाईपास पर मज़दा यूनियन ने एहतजाज के लिए रोड बंद कर दिया, जिसके ऊपर जो कस्टम हुक्काम से रब्ता किया तो कस्टम इन्फोर्समेंट कराची ने कहा है कि मज़दा यूनियन के हालिया बयान की सख्ती से तरदीद करते हैं और कहा है कि 22 नवंबर की रात 1 बजे ये वाक़या हुआ था जिसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। कस्टम के अमले पर बदतमीजी और रिश्वत खतानी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और ये कहा है कि कस्टम हुक्काम ने तकरीबन रात 1 बजे जो मुतअद्दिदा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर हमदर्द चेक पोस्ट के अमले ने जो बंद मुराद रोड से आने वाली मज़दा ट्रक को जो नॉर्दर्न बाईपास पर रोका था, जिसकी जांच की तो एक अंदाजे के मुताबिक उस मज़दा ट्रक से 5,000 लीटर स्मगल शुदा ईरानी डीजल बरामद हुआ था और इसको खुफिया खानों में छुपाया हुआ था। और अचानक से यहाँ पे देखा गया कि उस चेक पोस्ट पर जो है वहाँ पे जो बड़ी तादाद में जो है ये इनका हजूम जो है मज़दा यूनियन का वो पहुंच गया था, जिसमें 40 के करीब अफराद शामिल थे। चेक पोस्ट पर पहुंचे और गाड़ी को कस्टम हुक्काम से छीनने की कोशिश की और जवाब में हमदर्द के अमले ने फौरी तौर पर कस्टम ASO हेडक्वार्टर और मुकामी पुलिस समेत सिंध रेंजर को जो है मदद के लिए तलब किया था। इससे पहले कि पुलिस और रेंजर जय मौके पर पहुंचती, मुश्तिल हजूम ने चेक पोस्ट पर खतरा और हवाई फायरिंग कर दी, जिससे कस्टम का अमला जख्मी हुआ और गाड़ियों इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान पहुंचा। कस्टम एहलकारों ने सिंध रेंजर और पुलिस के साथ मिलकर हमलावर को कामयाबी से पसपा किया और उनको पीछे हटने पर मजबूर किया और हजूम जो है उसके बाद जाके नॉर्दर्न बाईपास का एहतजाजन ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है। अशरफ खान, अगर इस वाक़े से कतई नज़र हम कस्टम्स हुकाम के हवाले से बात करें तो शिकायत बहुत ज़्यादा आती हैं उनके रवैये को लेकर, उनके मामलात को लेकर और आम शहरियों की तरफ से भी। दूसरी तरफ मज़दा यूनियन है, उनका भी कैरेक्टर सबके सामने है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इस सारी स्टोरी में।
जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और सबसे अहम बात ये समझना ये है कि एफबीआर ने नया फार्मूला जो तय किया है, जिसके बाद इन सबको ये बताया गया है कि अगर कोई भी स्मगलिंग का सामान मिलेगा तो स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी, ट्रक या ट्रॉलर जो है उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसको दोबारा सड़क पे नहीं आना जाएगा। तो यही वो वजह है कि जिसके ऊपर जो ये मुस्तैल हुजूम जो है मजदूर यूनियन का वो वहाँ पहुंचा है, क्योंकि गाड़ी छोड़ाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि अब जो नया एक्ट आया है एफबीआर का, क्योंकि स्मगलिंग में जो भी सामान इस्तेमाल होगा, चाहे ट्रक हो, बस हो, तो कब्जे में ले ली जाती है। पहले उसको जो है केस करने के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन नए कानून के तहत अगर कोई भी स्मगलिंग का सामान बरामद होता है तो जिस ट्रक में, ट्रॉले में या आपका डंपर में अगर वो सामान होगा उसको भी जब्त कर लिया जाता है और स्मगलिंग में उसको छोड़ा नहीं जाता है। जब केस चलता है, केस चलने के बाद जो है उसके ऊपर जो अदालत फैसला करती है उसका अमल दरामद होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि कस्टम हुक्काम का जो राब्ता किया है तो उन्होंने ये बताया कि खुफिया इत्तला पर ये एक्शन किया गया था और गाड़ी से जो मुतल्लिका जो स्मगल शुदा जो है 5000 लीटर जो डीजल भी बरामद हुआ था। लेकिन इसके बावजूद हुजूम ने आके चेक पोस्ट पे हमला किया, जिसकी फुटेज भी उन्होंने दी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जो कस्टम हुक्काम की गाड़ियां हैं उस पर फायरिंग का भी निशान है, शीशे भी तोड़े गए हैं, पथराव भी किया गया है। तो ये कस्टम मुकाम का जो चेक पोस्ट पे काम ये होता है कि गाड़ियों की जांच की जाए और अगर वहां से कोई सामान मिलता है तो स्मगल शुदा सामान को जब्त करके वो गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है नए कानून के तहत। इसके ऊपर यहाँ पे देखा जा रहा है कि मजदा जो यूनियन है उसकी जानिब से पुरजोर जो है उसका शदीद रद्द अमल भी आया है, जिसके ऊपर जो उन्होंने इल्जामात लगाए उसको सख्ती से तजदीद कर दिया गया। और ये अमूमी तौर पर ये देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो खास तौर पे जो चेक पोस्ट है इस पे जो है कस्टम हुक्काम होती है, इन्फोर्समेंट होती है, जिसका काम है इस स्मगलिंग की रोकथाम। लेकिन इसको रोकने के लिए जब इल्जाम किए जाते हैं तो इस तरीके की चीजें सामने आती हैं और यहाँ पे जो इल्जाम लगाते हैं उसको कस्टम हमेशा से तजदीद करता रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में वकला ने कन्वेंशन के मौका पर पोलिंग अमले को अहाता अदालत से निकाल दिया, जबकि पुलिस एहलकारों को भी धक्के देकर निकाल दिया। सिंध हाई कोर्ट में वकला ने कन्वेंशन के मौका पर पोलिंग अमले को अहाता अदालत से निकाल दिया है, जबकि पुलिस एहलकारों को भी धक्के देकर निकाल दिया गया है। वकला अदालत के अंदर दाखिल हो गए। कन्वेंशन अदालत के अंदर हर सूरत होगा, ये वकला की जानिब से आज़म दोहराया गया। वकला ने पोलिंग के अमले को अहाता अदालत से निकाल दिया, पुलिस को भी धक्के देकर निकाल दिया है। सिंध हाई कोर्ट में वकला ने कन्वेंशन के मौका पर पोलिंग अमले को अहाता अदालत से निकाल दिया है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, आज वकला कन्वेंशन हो रहा है जिसमें सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन और दीगर बार के जो वकला हैं वो आज आ रहे हैं। इससे कबल इस कन्वेंशन का ऐलान जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से किया गया था, जिसमें न्यू बार रूम के अंदर कन्वेंशन का ऐलान किया गया था। बाद जो है सिंध हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं उन्होंने इस कन्वेंशन को मुलतवी किया था। बाद में जो है वकला ने ऐलान किया था कि जो न्यू बार रूम है इसके सामने ये कन्वेंशन किया जाएगा। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक मरासला जारी किया गया था जिसमें एहतजाज और नारेबाजी से परहेज करने और जो है किसी भी एहतजाज से रोका गया था। उसके बाद आज सिंध हाई कोर्ट के जो दाखिली रास्ते वहां पर कन्वेंशन होना था, जिसकी वकीला जो है वो जो दाखिली रास्ते वहां पर पहुंचे, वहां पर नफरी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची थी। बाद में वकला ने ऐलान किया कि वो सिंध हाई कोर्ट बार के अंदर ही जो है वो कन्वेंशन करेंगे। जैसे ही वकला अंदर घुसे तो गेट पर मौजूद पुलिस एहलकारों को वकला ने अदालत से बाहर कर दिया है, जिसमें काफी पुलिस एहलकार जो थे सिक्योरिटी के लिए वहां पर तैनात थे। तमाम पुलिस एहलकारों को जो है अहाता अदालत से निकाल दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना फिर महंगा। आलमी बाजार में सोना $23 महंगा होकर $4065 फी औंस पर पहुंच गया। एक तोला 4,28,862 रुपए का हो गया। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि आलमी और मुकामी मार्केट में सोना फिर महंगा। आलमी मार्केट में सोना $23 महंगा होकर $4065 फी औंस पर पहुंच गया। अशरफ खान से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, एक बार फिर आलमी और मुकामी मार्केट में सोना महंगा हो गया। आलमी मार्केट में जो है सोना $23 महंगा होकर $4065 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिससे एक तोला सोना $2300 महंगा होकर $4,28,862 रुपए का हो गया है।
साथ ही 10 ग्राम सोना 1972 रुपए इजाफे से 3,67,680 रुपए पर पहुंच गया। इसके साथ ही 1 तोला चांदी की कीमत 48 रुपए इजाफे से 5,270 रुपए पर पहुंच गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि आर्मी मार्केट में एक बार फिर देखा जा रहा है कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोने में खरीदारी हुई, जिसकी वजह से मुकामी मार्केट में भी सोना महंगा हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।